ठीक हो सारे। मैं एक बार फिर तो स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ क्लास 9th ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। यूनिट ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਸਟ वन ਕੀ ਸੀ यूनिट ਦਾ ਨਾਮ? यूनिट ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 9th 10th ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਖੁਦ ਦੇ ਬਣਾਓ। ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰੀਡਰ ਵੀ ਬਣੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मतलब कि ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਰੀਫ डिस्कशन। ਬਰੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਨੀ ਬਰੀਫਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर कर देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कोई चीज ने, सेल वॉल अलग है। सेल वॉल कितने अलग है? सेल वॉल ताड़ी सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल यानी कि प्लांट सेल दे विच अवेलेबल है। एनिमल सेल दे विच सेल वॉल नहीं हुंदी। जदों मैं तुहानूं प्लांट सेल और एनिमल सेल दा डिफरेंस करवाना उस वेले ज़्यादा वधिया समझ आ जाएगा। पर क्योंकि ये भी एक कंपोनेंट हो सकती है, इस करके इन्हों भी नंबर दिता गया। तीसरा पॉइंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियस और फिफ्थ पॉइंट है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स। सो एक एक करके आप सारे कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। सैल ऑर्गेनेल्स केड़े ने, अगे दी टाइप्स से भी आपां दी चर्चा करनी है। सब तो पहली गल आंदी है सैल वॉल। सैल वॉल प्लांट सैल दे विच ही अवेलेबल हुंदी है। मैं डेप्थ विच उन्हां नूं करावांगा। प्लाज्मा मैंब्रेन या सैल मैंब्रेन हर एक सैल का एक स्पेसिफिक पार्ट है, होना ही होना पक्का है। ठीक है, नेसेसिटी है जी। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किसी भी तरह के सैल दे विच एक लिक्विड की तरह का मटीरियल है। नैक्सट आ गया तुहाडे कोल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तुहाडे सैल का मेन केंद्र है। पूरे के पूरे सैल की जिन्नी भी एक्टिविटीज़ ने, जिन्ने भी एक्शनस ने, जिन्ने भी टास्क है, वो न्यूक्लियस द्वारा ही एक्टिवेट किए जाते हैं, ये द्वारा ही रेगूलेट किए जाते हैं, ये द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। और नैक्सट फाइनल पार्ट है सैल ऑर्गेनेल्स।
देखो जिस तरह साडे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स ने, ठीक है, जिस तरह की हार्ट हो गया, लिवर, किडनीज, ठीक है, उसी तरह ही सैल दे भी सब पार्ट्स होंदे ने, ओदे भी ऑर्गन होंदे आ, उन्होंने कहा जाता सैल ऑर्गेनेल्स। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ऑर्गेनेल्स ने ਇਹਨੂੰ भी दसदे हैं। सो इत्थे तक क्लीयर हो गया बेटा जी। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੀਪਲੀ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। हो गया, ठीक है। सो वन बाय वन थोड़ा जिहा ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो सब तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ बनाए करते हैं। सो सब तो पहले आ गई तुहाडे कोल सैल मैम्ब्रेन। व्हाट इज सैल मैम्ब्रेन? देखो सैल जिहड़ा वा वो एक जीवन का सब तो छोटा यूनिट है जिहदे अंदर बहुत सारिया एक्टिविटीज़ हो रही। लाइफ का सब तो छोटा यूनिट सैल है, उहदे च बहुत सारिया एक्टिविटीज़ हो रही। उन्हां एक्टिविटीज़ नूं बाकी बाहर दे सराउंडिंग तो अलग करने वास्ते, आइसोलेट रखने वास्ते सैल दे आले दुआले एक प्रोटेक्टिव लेयर हुंदी है जिन्हों असी सैल मैम्ब्रेन कहने हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मैम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है जो कि बहुत थिन है और सब तो खास गल थिन होने दे नाल नाल बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल भी है। फ्लैक्सीबल कह लो, इलास्टिक कह लो, मतलब जेड़ी सैल वॉल है वो सैल दे आले दुआले एक इस तरह की बाउंड्री है जो कि बहुत थिन है और फ्लैक्सीबल है। फ्लैक्सीबल है जदों सैल कोई एक्टिविटी करके एक्सपेंशन करता वा तो एक्सपेंशन के तौर के उत्ते वध भी जाती है, ते उस तरह ही कॉन्ट्रैक्शन करन दे उत्ते, क्योंकि काफ़ी सारी प्रोसैसिस होंदी है। जदों रेस्पिरेशन होंदी है, रेस्पिरेशन के दौरान काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होंदियां सैल दे थ्रू, ते वो एक्टिविटी के दौरान साडी जिहड़ी सैल वॉल है लगातार हो सकता वा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हो सकता वा एक्सपैंड कर जाए। सैल वॉल नूं आपां एक बैलून की तरह समझ सकते हैं। इस तरह का बैलून जिहदे अंदर असीं पानी भरिया होया, वो पानी जिहड़ा वा वो सैल दे अंदर होएगा ते वो जिहड़ा बैलून की जिहड़ी आउटर मोल वाल है वो तुहाडी सैल मैम्ब्रेन या प्लाज्मा मैम्ब्रेन है। उस तो इलावा जे गल करिए कि यह की करदी है, यह की करदा, यह करदा होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ सैल। जो भी कंटेंट सैल के अंदर जो चीज़ां भी है जिहदी आपां हुण गल करनी है, जो कंपोनेंट सारे की गल होनी है, वो सारे के सारे कंपोनेंट नूं होल्ड करके रखदा। ठीक, मैं थोड़ा स्पीड से चलदा तां जो कि आपां अज वड्डा चैप्टर कवर करिए। गिव डेफिनेट शेप टू सैल। सैल नूं एक पर्टिकुलर टाइप की शेप देने का काम भी तुहाडे कोल सैल मैम्ब्रेन का ही हुंदा। सो अलग अलग प्रकार के सैलों की जिहड़ी शेप है, जो पिछले यार आपां ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ही, नर्व सैल की गल हुई ही, RBC रेड ब्लड सैल की गल हुई ही, वो अलग अलग शेप ते ही उन्होंने अकॉर्डिंग टू उन्होंने एक्टिविटीज़ के हिसाब नाल सैल वॉल जिहड़ी आ अपने आप दे सैल नूं चेंज कर लैंदी है। सो द सैल हैज़ डेफिनेट शेप ड्यू टू सैल वॉल। उस तो अलावा सब तो खास इट इज SPM सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन का मतलब की हुंदा, इहदा मतलब है अलाओ स्पेसिफिक मटीरियल टू पास थ्रू। बेटा जिहड़ी तुहाडी सैल मैम्ब्रेन है ਉਹਦੇ ਚ सब तो खास क्वालिटी यही है कि वो सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन है। परमीएबल मतलब अलोएबल, सैमी मतलब कुछ, यानी कि स्पैसिफिक नेचर की होंदी है। स्पैसिफिक नेचर की होने करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ पार्टिकल्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ, कुछ कंपोनेंट्स ਜਿਹੜੇ ਆ
ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਦ ਸੈਲ ਵਾਲ ਇਜ਼ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ठीक है, डन। नेक्स्ट, और यही फ्लैक्सीबिलिटी किसी भी प्रकार के सैल दे लई फ्लैक्सीबिलिटी enables the cell to engulf। इसे फ्लैक्सीबिलिटी दे करके जेड़ा सैल है वो किसी प्रकार की चीज नू अपने अंदर समा सकता है या इनटेक कर सकता है। जिदा साडे कोल एक सैल है, लेट मान लो कोई सैल है, अगर मान लो ने फूड लेना है ना, तो फूड लैन दे लई वो की करदा वा, वो जो फूड दे कोले जांदा ते सैल वाल जिहड़ी फ्लैक्सीबिलिटी करके एक वैक्यूम क्रिएट करदी है ते उस फूड नू अपने अंदर समा लैंदी है और बाद विच वो फूड जिहड़ा सैल दे अंदर चला जांदा, जिहदे नाल सैल दे अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज होंदियां ने। सो यह जिहड़ी प्रॉपर्टी है फूड इनटेक करन दी, यह भी बहुत वधिया वा, सैल वॉल करके ही यह प्रॉपर्टी है। द लास्ट पॉइंट, सैल वॉल किस चीज की बनी होंदी है? सैल वॉल जिहड़ी आ वो दो मेन चीज की बनती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो सैल वॉल लिपिड और प्रोटीन की बनी होंदी है। ठीक, करो इन्हें नोटिफाई, फिर अगे चलते हैं। जी ठीक है, एक्चुअली मैं अगों पिछे इस करके हो जाना कि तुसी इनू नोटिफाई कर सको, पाउज कर लिया करो उस वेले। ठीक है, हुण गल करते हैं सैकेंड कंपोनेंट दे सैल दी। अज का साडा मेन टॉपिक है पूरे दे पूरे सैल नू चंगी तरह पढ़ना, इहदी सिमिट्री वाइज और सिमिट्रिकल जो भी यूनिट ये हैगे ने, जो भी ये अंदर कंपोनेंट्स ने उन्होंने फंक्शंस भी देखने हैं कि की करते हो। सो नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की है जी? साइटोप्लाज्म देखो, मान लो ये सैल है और ये हजे आप गल करनी है, यह सैल का केंद्र है, इन्होंने न्यूक्लियस किया। एक किस्म का लिक्विड हुंदा, इट इज जस्ट लाइक अ लिक्विड इनसाइड द सेल इन विच वेरियस ऑर्गेनल्स फ्लोट। एक लिक्विड है जो कि सेल दे अंदर मौजूद हुंदा और बहुत सारे जिहड़े ऑर्गेनल पार्ट सेल दे अंदर ने वो इस लिक्विड दे विच फ्लोट करते हैं। ठीक है, इधरों इधरों फ्लोट करते हैं। liquid inside cell in which various organelles float, जिहदे विच बहुत सारे जिहड़े ऑर्गेनल्स ने वो फ्लोट करते हैं। क्लियर हो गया गल? इन्हों आप की बोलते हैं, इन्हों बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनल बारे अगे पढ़ना आपां, सो उदों दी ते गल करांगे। इहदा जिहड़ी मेन कंपोजिशन है वो किस किस चीज नाल बनी हुंदी? सब तो खास चीज ते इहदे विच हुंदा जी पहला वाटर। ठीक है, उस तो बाद कुछ साल्ट हो सकते हैं या कुछ प्रोटीन हो सकते हैं। जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट किसी सैल दे विच होने वाली मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी लई चाहिदी हुंदी है, वो रिक्वायरमेंट साइटोप्लाज्म द्वारा पूरी की जाती है। सो साइटोप्लाज्म इज जस्ट लाइक अ लिक्विड। जिस तरह मैं पहला भी तुहानू एग्जांपल दी थी, एक बैलून है, उस बैलून नू असीं पानी नाल भर दिता,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ एंड इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म दे इस सब तो छोटे बेसिक पार्ट ਨੂੰ साइटोसोल कहा जाता। व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल इज द aqueous ground substance, aqueous ground substance of cytoplasm। साइटोप्लाज्म का ग्राउंड सबसटेंस देखी कि मटीरियल की है वो असल च आप बोलते हैं उन्होंने कहा जाता एक्वस ग्राउंड सबसटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। हम जो कंपोनेंट कर जा रहे हैं ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर तुसी इस कंपोनेंट बारे बहुत पढ़ना। इन फ्यूचर मतलब अगर तुसी बायोलॉजी नू फॉलो करते हो टिल द डेप्थ। ठीक है, चलो ते की है, ਇਹਦਾ नाम है जी न्यूक्लियस। द कंपोनेंट नेम इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की है जी किसी भी सैल दे विच वैसे तो यह किते भी हो सकता, किते भी हो सकता, पर आप मान के चलते हैं कि मान लो सेंट्रल पार्ट है, इट इज अ सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की गल करनी है असी, इनू आप थोड़ा जिहा इनलार्ज करके ये सब पार्ट्स पढ़ जा रहे हैं। सब तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल, सॉरी ऑफ सेल, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल का पार्ट, बिकॉज इट डायरेक्ट और कंट्रोल all the activities of cell। सेल दियां सारियां एक्टिविटीज जो भी सेल करता वो सारी एक्टिविटीज नू दिशा देना और कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस कोल है। इसे करके आपां इनू यह भी कह सकते हैं इट इज हेडक्वार्टर ऑफ सेल। सेल का हेडक्वार्टर है क्योंकि ये सारे दे सारे काम जो भी सेल ने करने हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। लार्जर इन साइज, इवन इट इज लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो यह सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, सेल के केंद्र दे विच हुंदा है। जिन्ने भी सेल द्वारा जिन्नियां भी एक्टिविटीज है वो सारियां एक्टिविटीज जिहड़ियां वा वो डायरैक्ट या कंट्रोल न्यूक्लियस द्वारा ही कीतियां जांदियां ने। सेल का सब तो वड्डा पार्ट जिहड़ा वा वो तुहाडा न्यूक्लियस ही है। ठीक है, करो नोटिफाई। एंड इट आल्सो होल्ड transmission of hereditary character, hereditary character from parents to offspring।
इसका मतलब की है बेटा कि एक पेरेंट सैल ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਆਈ ਕਲਰ, ਉਹਦੇ हेयर कलर, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਨੋਟ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਵੈਲਪ और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियर इनवेल्प एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, हुण ये दो कंपोनेंट पार्ट की काम करते पे ने, इहदे ते गल करते हैं। न्यूक्लियर इनवेल्प की है, यह एक डबल लेयर प्रोटेक्शन है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है किसी भी न्यूक्लियस के आले दुआले। यह एक न्यूक्लियस है जो कि ऑलरेडी एक सैल दे विच है, उस न्यूक्लियस नू कवर करने वाला जिहड़ा इनवेल्प है उन्होंने कहा गया न्यूक्लियर इनवेल्प। यह जिहड़ी डबल लेयर स्ट्रक्चर्स देखते पे हो, इनू असी न्यूक्लियर इनवेल्प का नाम दिंदे हां। सो इनू कह सकते हैं कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर लेयर और मैम्ब्रेन। दो मैम्ब्रेन तो मिलकर बनया हुंदा न्यूक्लियर इनवेल्प तुहाडा। यह की करदा वा, यह करदा वा कवर न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तुहाडे सैल दे विच पिया हुंदा ते सैल जिहड़ा वा उस साइटोप्लाज्म दे नाल फिल्ड अप होया। सो साइटोप्लाज्म जिहड़ा वा न्यूक्लियस के अंदर ना जाए या न्यूक्लियस का कोई मटीरियल जिहड़ा वा साइटोप्लाज्म च बाहर ना आए, ओदी प्रोटेक्शन का काम जिहड़ा करदा वा कौन करदा वा, वो करदा वा तुहाडा न्यूक्लियर इनवेल्प। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेल्प। उस तो बाद आ जांदी गल, हाँ, सो आपां लिख सकते हैं सैपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। आपां इहनूं डिफरेंट ते मतलब उस डिफरेंस दसदा वा। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੋਰਸ। ਪੋਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਵੈਲਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स। ठीक, ऐसा गया न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। जो जो पढ़ते जा रहे हैं उन्हें लिखते जाने हैं। आप पूरे का पूरा न्यूक्लियस क्लियर करना। ठीक है, और एक बार करना, देखो मैं बार बार एक चीज कह चुकी हूं, एक बार फिर बोल देना
बेटा स्टडी इस हिसाब ना करी दिया कि एक बार ही करनी पे। अगर तुम यह वीडियो देखते पे हो, इनू तुसी अगर चाहते हो कि बार बार सैल बारे पढ़ना ना पे, फिर तो क्रैमिंग ना करनी पे, तो क्यों नहीं असी एक बार इनू कर लेंगे। सो वन टाइम करांगे, कंप्लीट करांगे, एनू मन के चलते हैं। सो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर की है। सो न्यूक्लियर पोर का भी अपना काम है, वो काम किया दे परमिट ट्रांसफर ऑफ मटीरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्मा। हुण हुंदा की है, न्यूक्लियस सैल दे अंदर है, सैल दे बाहर साइटोप्लाज्मा वा, सॉरी न्यूक्लियस दे बाहर इत्थे साइटोप्लाज्मा वा, इहदे अंदर हुंदा न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, मैं इत्थे गल कर देना न्यूक्लियोप्लाज्मा की है। जिस तरह किसी सैल दे विच ओदा लिक्विड पार्ट जो कि सैल वाल और न्यूक्लियस सॉरी सैल मैम्ब्रेन ते न्यूक्लियस दे विच हुंदा, ओनू आपां की बोलदे हैं साइटोप्लाज्मा। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड हुंदा, उस लिक्विड नूं आपां बोलदे हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। सो न्यूक्लियोप्लाज्मा दे तो साइटोप्लाज्मा दे विच कई बार कुछ मटीरियल ट्रांसफर हुंदा ते कई बार साइटोप्लाज्मा तो न्यूक्लियोप्लाज्मा च ट्रांसफर हुंदा। यह जिहड़ी ट्रांसमिशन है, इनू परमिट कौन करदा, इनू परमिट करदा वा तुहाडा सैल पोर, सॉरी न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, क्लियर होगी गल। न्यूक्लियर पोर परमिट द ट्रांसमिशन बिटवीन द cell wall and sorry transmit the material from cytoplasm to nucleoplasm or nucleoplasm to cytoplasm। सॉरी मैं पानी पीना, एक मिनट करो तो ही नोट ना। सो जो सैल का केंद्र है न्यूक्लियस, उसके भी दो पार्ट निकले, एक न्यूक्लियर इनवेल्प, एक न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियर इनवेल्प जो है वो सैपरेशन का काम करता वा साइटोप्लाज्मा ते न्यूक्लियोप्लाज्मा। जो न्यूक्लियस दे अंदर का हिस्सा वा और जो बाहर का हिस्सा उहदे च बाउंड्री वाल का काम करता पिया न्यूक्लियर इनवेल्प। यह कवर करता वा पूरे पूरे न्यूक्लियस नूं और सैपरेट करन दिया वा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटे छोटे पोर्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ न्यूक्लियोप्लाज्मा तो कुछ मटीरियल साइटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा च कुछ मटीरियल न्यूक्लियोप्लाज्मा च ट्रांसफर कर सकदा वैन एवर रिक्वायर्ड। और उस तो इलावा न्यूक्लियोप्लाज्मा की है, न्यूक्लियोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा की तरह ही एक लिक्विड मटीरियल है, पर वो न्यूक्लियस के अंदर हुंदा। यह न्यूक्लियस का ग्राउंड मटीरियल है। ठीक है, यह तुहाडा न्यूक्लियस का ग्राउंड मटीरियल है। क्लियर होगी गल, डन। ठीक, हम गल करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म दे कंपोजिशन दी। न्यूक्लियोप्लाज्म दे अंदर की है। देखो बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म दे अगे फिर इहदे विच दो चीज़ां होंदियां। वो दो चीज़ां की होंदियां न्यूक्लियोप्लाज्म दे अगे? एक हुंदा तुहाडा न्यूक्लियोस, न्यूक्लियोस, ठीक है, और दूसरा हुंदा तुहाडे को क्रोमैटिन मटीरियल। एक हो गया तुहाडे को न्यूक्लियस ते दूसरा हुंदा तुहाडे को क्रोमैटिन मटीरियल। यह तुहाडे न्यूक्लियोप्लाज्म दे अंदर हुंदे आ। एक न्यूक्लियोस, ठीक है, ते एक क्रोमैटिन मटीरियल। हुण सब तो पहला गल कर लेंगे न्यूक्लियोस की है। न्यूक्लियस जो कि सैल दा सेंट्रल पार्ट सी, ओदे अंदर भी एक पार्ट हुंदा, ओनू आपां बोलदे हां न्यूक्लियोस। इहनां दी गिनती 1 और मोर देन 1 हो सकती है। ठीक है, और इन्हां दा मेन काम पता की है? दे फॉर्म राइबोसोम्स। हुण राइबोसोम्स की है?
देखो बेटा किसी भी सैल दे विच बहुत सारिया एक्टिविटीज होंदियां ते उन्हां एक्टिविटीज नूं करन वास्ते सैल नूं जरूरत हुंदी है लॉट ऑफ एनर्जी दी ते ओह एनर्जी उन्हां नूं कित्थों मिलदी है? ओह मिलदी है प्रोटीन तो। राइबोसोम जिहड़े ने ओह तुहाडे प्रोटीन फॉर्मर ने, ओह तुहाडा प्रोटीन बनांदे ने। प्रोटीन फॉर्मेशन दी जिहड़ी प्रोसैस है ओह राइबोसोम्स द्वारा की जाती है और राइबोसोम्स न्यूक्लियस दे अंदर मौजूद होंगे। सो न्यूक्लियस जिहड़ा वा वो प्रोटीन नूं प्रोड्यूस करता पिया। ठीक है, क्लियर हो गई इत्थे गल। अगे गल आंदी है तुहाडे कोल क्रोमैटिन मटीरियल दी। अगर क्रोमैटिन मटीरियल की गल करिए तो क्रोमैटिन मटीरियल की हुंदा? क्रोमैटिन मटीरियल ना तुहाडा ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुंदा, फोल्डेड, दिस इज entangled mass of thread like structure। इंटैंगल मतलब उलझिया होया। मान लो एक थ्रेड है ना, थ्रेड नूं तुसी किसी चीज दे उत्ते सुट दिंदे हो किसी सरफेस ते, वो जिद्दां पलच के मिक्स हो के रहेगा उन्होंने आप बोलते हैं इंटैंगल्ड। जेड़ा तुहाडा क्रोमेटाइन मटीरियल है न्यूक्लियोसम दे अंदर वो इस तरह मिक्सअप होंदा, मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। है की है क्रोमेटाइन मटीरियल, क्रोमेटाइन मटीरियल। क्लियर? और ਇਹਦਾ मेन काम किया इस क्रोमेटाइन मटीरियल का मेन काम किया ऐ ते दसदा भी ऐ मटीरियल है, काम की ਇਹਦਾ मेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन it gets organized into chromosomes। सैल डिवीजन के दौरान ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਗਲਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ consist of two types, nucleus and chromatin material। nucleus is one or more than in number and they form ribosome which are the producer of protein which are very requirable for the cell activities। ठीक, उस तो बाद गल आती है तुहाडे कोल क्रोमेटाइन मटीरियल दी। क्रोमेटाइन मटीरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही हुंदा और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही हुंदा और ਇਹਦਾ मेन काम हैगा जो भी, क्योंकि देखो सैल जेड़ा ना सैल एक सैल जेड़ा वा ਉਹ ਜਦੋਂ दूसरे सैल ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ठीक है, whenever one cell give you another cell ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ क्रोमेटाइन मटीरियल ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। क्रोमेटाइन मटीरियल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ क्रोमोसोम। ठीक, क्लियर करो नोटिफाई। ठीक, सो हुण आपां गल करदे हां क्रोमेटिन मटीरियल दे विच जो एक शब्द आया तुहाडे कोल इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, ठीक। हुण क्रोमोसोम्स की है? देखो बेटा ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ क्रोमेटिन ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਖਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ क्रोमोसोम ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्रोमेटिन मटीरियल जेड़ा वो किस तरह होंदा, जिस तरह पहला ते क्रोमेटिन मटीरियल आया सी मिक्स 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 मिक्स, पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जेड़ा क्रोमेटिन मटीरियल है वो इस तरह दे
इस तरह के शेप दे विच आ जांदा, इहनूं आपां क्रोमोसोम्स बोलदे हां। सो क्रोमोसोम की आ, क्रोमोसोम जिहड़े ने वो क्रोमेटिन मटीरियल तो ही मिल के बने ने और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स visible on cell division। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਡੀਐਨਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਐਨਏ। ਡੀਐਨਏ ਕੀ ਆ, ਡੀਐਨਏ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਜੀਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡੀਐਨਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਜੀਨ, that is DNA contain gene, they are functional segment of DNA। ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਡੀਐਨਏ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਡੀਐਨਏ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ genetic information is transferred from parent to offspring with the help of DNA। so ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਆ ਉਹੀ ਮੇਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਓ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਓ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਕਲੀਓ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਿਕਲਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਟਾਈਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਟਾਈਪਸ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਐਨੀਮਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
कैरियोटिक, कैरियोटिक सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो एक्चुअल दे विच ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ मैं पहला भी दसिया कि अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार की लाइफ, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के सैल्स नाल मिलकर बने हुए। तो इन्हां दी जिहड़ी सैल की डिवीजन है उन्होंने मुख्य तौर पर दो हिस्सों के वंड दिता गया। एक तो कहता गया प्रोकैरियोटिक सैल ते एक कह दिता गया यूकैरियोटिक सैल। मैं तुहाडे को पहला आना यूकैरियोटिक वाले पासे। देखो इहदा मतलब की हुंदा, इहदा मतलब हुंदा ट्रू ते कैरियोटिक का मतलब की हुंदा, कैरियोटिक का मतलब हुंदा न्यूक्लियस। ठीक, प्रोकैरियोटिक का मतलब हुंदा प्रो मतलब हो गया बिफोर, ते कैरियोटिक का मतलब की हो गया फिर तो न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि यह दोनों के नाम तो ही काफी तरह का तुहानू मैसेज आ रहा कि यूकैरियोटिक का मतलब हो गया ओह जे सैल जिन्हां दे विच ट्रू न्यूक्लियस अवेलेबल होएगा। चलो आओ डिफरेंस की गल करते हैं। डिफरेंस विच छेती देखो कोई भी चीज़ अगर तुसीं पढ़ते पे हो, अगर उहदे नाल कोई कंपैरेटिव डिफरेंस की गल आ जाती है तो थोड़ा आसान हो जाता। सो कोशिश करया करो डिफरेंस करके पढ़न की। ठीक है, सो पहला आ जाता तुहाडे कोल प्रोकैरियोटिक। जे प्रोकैरियोटिक सैल की गल करी जाए तो इहदे च आ जांदी तुहाडे कोल साइज। व्हाट इज साइज? प्रोकैरियोटिक सैल का साइज कितना हुंदा? यह साइज वजों बहुत छोटे हुंदे आ, 1 × 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर तक। जद कि जेडे तुहाडे कोल यूकैरियोटिक है इन्हां दा साइज जिहड़ा वा वो अवेलेबल हुंदा वा 5 to 100 माइक्रोमीटर। बेटा मैं तुहानू क्लीयर कर दियां, जेडे तुहाडे प्रोकैरियोटिक सी ना, प्रोकैरियोटिक सैल जिहड़े आ उन्हां नू आपां एंशिएंट ऑर्गेनिज्म च देखदे आ। एंशिएंट मतलब इहो जिहा ऑर्गेनिज्म जिहड़ा कि साडी अर्थ विच सब तो पहला आया। सब तो पहला आने वाले ऑर्गेनिज्म दे विच हैगे सी साडे कुछ प्रकार दे बैक्टीरियास। वो सिंगल सैल्ड ऑर्गेनिज्म सी जिन्हां दे विच सैल जिहड़ा ही वो इन्ना ज़्यादा डेवलप नहीं होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी तरह ਦੇ ਨਾਲ न्यूक्लियस नहीं बनेगा। इस करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ प्रोकैरियोटिक। ਇਹ सब तो पुराने ऑर्गेनिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ एक सैल दे विच बहुत सारियां छोटियां छोटियां स्मॉलर बॉडीज आ गई, स्मॉलर कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट की गल करिए। दूसरा पॉइंट हैगा ट्रू न्यूक्लियस या कह लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट। जद कि यूकैरियोटिक दे विच तुहाडा जिहड़ा न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट हुंदा डेफिनेटली। देखो वैसे तो न्यूक्लियस का सारा मटीरियल तुहाडे प्रोकैरियोटिक दे विच ही हुंदा, पर प्रोकैरियोटिक सैल दे विच न्यूक्लियस जिहड़ा वा पूरी तरह नाल हर जगह दे उत्ते फैलिया हुंदा और न्यूक्लियस नू किसी भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री द्वारा वखरा नहीं किया जाता उहदे मटीरियल नू प्रोकैरियोटिक सैल विच। जबकि यूकैरियोटिक सैल आपां हुणे उहदे न्यूक्लियस की गल कीती है। न्यूक्लियस जिहड़ा वा पूरी तरह नाल वैल डिफाइंड बाउंड्री वाल जो कि न्यूक्लियर मैंबरेन आ उहदे नाल ढकिया हुंदा। सो इहदे च ट्रू न्यूक्लियस अवेलेबल हुंदा, इहदे विच तुहाडा न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं है, वो एब्सेंट है। ठीक, नैक्सट आ गया तुहाडे को न्यूक्लियोस एब्सेंट। भाई बिल्कुल जे न्यूक्लियस ही नहीं आ ते न्यूक्लियस दे विच वाला पार्ट न्यूक्लियोस भी नहीं हुंदा इहदे च, जद कि इहदे विच तुहाडा न्यूक्लियोस आपां गल कीती ना, न्यूक्लियस वो पार्ट जिहदे अंदर तुहाडा क्रोमेटिन मटीरियल है ना, क्रोमोसोम जितने बनते पे। सो प्रोकैरियोट्स विच प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं हुंदा, यूकैरियोट विच प्रॉपर न्यूक्लियस अवेलेबल हुंदा वा। सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। मैं पहला भी गल की कि जिहड़ी पुरानी लाइफ सी, बहुत पुरानी लाइफ, पुराना ऑर्गेनिज्म ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सैल सी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड मतलब पहला वाला सी है ना।
ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਓਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲ ਮੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲ ਈਓਕੈਰੀਓਟਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵੈਲਿਊ ਸਿੰਗਲ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ਕਲ ਇਦਾਂ ਐਕਸਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਓਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ 9th ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣ ਡਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।